Welcome student. So we'll continue with the theory of equation PYQs. Before that there is one announcement which came recently that related with Maharashtra CET. It is just my expectations, not something coming from the government. The thing is there is an exam of ICAR that is related with the agriculture and that is conducted by NTA, and NTA is a national testing authority. So obviously any exam conducted by NTA shouldn't cross within a state level exam. That exam is on the 7th September, 8th September. That is also the first phase of CET, MST CET. So, and there is one more exam on 17th September, that is ICER. That is again a reputed exam. And again that ICAR is also having one exam on 17th of September. So, I am not confident, but it's just an announcement. So, I am just sharing with you guys. God knows what will happen to the CET date, but still there is no communication from the MST CET cell, there is no communication. But you can just cross your fingers because this national level exam is coming in between. So means they need to come out with their what we can say that the final announcement, because that admit card and everything has been in the process. So God knows what will happen. But this is a national level exam, so it shouldn't be crossed. That is for sure. On priority basis, NTA date will be executed, and then only the state level date will be executed. So both phase 7th, 8th, and I guess some 10th or something, ICAR is there, and then on 17th there is one more exam conducted by NTA only, and there is ICER. That is of, I hope that NICER and ICER you guys know. So that ICER is on 17th of September. So both the phase is having some contradiction right now. Okay, fine. That's the information I want to share with you. Now we'll continue with our example. See, I'm taking a little effort on getting the questions in order, because these questions which I took is with some sense. I mean, it's not that somewhere I saw it and I have taken it, with some sense, because I want you guys to be aware about the things. The way we have done in the earlier videos, it is just an approach which I am following, that you should be aware about the pattern. Fine. So till last video we have done the questions on trigonometry in the last video. One more question is there. See, why I took directly JEE Mains 2006. First of all, this question could be related with trigonometry. I will solve it using trigonometry because I found it easier. You can solve it with some other approach. That is your priority. That is your case, that you can try it with some other approach. Your teachers would have done with other approach. But I found with trigonometry easier. Second thing, this question is little tougher compared to the earlier questions which we have taken. We have taken quite a few questions of 19 and 20, last 2 years shift. So it has been observed that after this is 22nd question, so you can go back to first 21 question. You will observe that the most of the question of 19 and 20s your shift, you will observe that they are quite easier. Compared to this 2006 is little tougher. So earlier the questions were tougher. There were no what you can say resources, Google, YouTube was available. Still student used to crack. So compared to that, today the student who are facing JEE Mains and etc., they are at a better position because everything is available. Second thing, the level has decreased. Fine. Similarly, someone think that in MST CET, in the official document they mentioned that the level of MST CET will be in line with JC. They have to mention that because they have changed the syllabus in last 2 years, 11th last year and 12th. This means last to last year 11th and this year 12th. And their quotation is like that we want to make our books in line with the CBSE that is conducted by which is conducting JEE Mains. So they have to tell it officially. But CET, MST CET has its own level. They have limited question bank and everything. So don't expect that that the question will change. They have to mention it. It will be of JEE level because they don't have any other option. They can't say that we have changed the book as per the CBSE pattern, but we will follow our own course, our own question pattern. They can't say like that. So make a note that it will be just like the same, like the strategy which I told
what we can say that the in a textbook and etc etc. So that again I don't want to discuss here. Yeah, good question. So let ABC be the sides. This is important. So why I consider this to be a question of trigonometry is because of this. To be precise, excuse me. To be precise, I will consider this to be a question of solution of triangle. Fine, A not equal to B not equal to C and lambda belongs to real number. If the roots of the equation, this is the equation, in X are real. So roots are real, so that means I know that if roots are real, then I have one condition that discriminant is greater than equal to 0. So I will follow that condition first and foremost and then we'll proceed. So what is discriminant here? B square minus 4AC. So B square minus 4AC is 4 times A plus B plus C minus 4A is 1 and C is this complete. Into 3 lambda times AB plus BC plus CA. So B square minus 4AC is greater than 0. In fact, we can say that greater than equal to 0. Fine. Okay. So that is the case. So I can simply cancel 4 from both sides because if this goes to that side, 4 get cancelled. And in fact, I am going to move it there only. A plus B plus C whole square is equal to this is shifted to the other side. 3 lambda, and when AB plus BC plus C is shifted, I will bring it back to here. That we can do. AB plus BC plus C, something like this. Fine. Why I have done? So I checked the option. Option is in terms of relation with lambda. That's why I just kept lambda to that side and the rest this side. Now it's a tricky. How to crack this? How to crack this? That is very important point. ABC are the sides of a triangle. So this gives me case to just think over the next step. So I hope that you guys know solution of triangle cosine rule. So let me just check out the cosine rule over here. What is cos A? That is B square plus C square minus A square upon twice BC. What is cos B? It is A square plus C square minus B square upon twice AC. What is cos C? It is A square plus B square minus C square upon twice AB. Fine. That is something I am getting for this cos and all that. Now, am I in line with this? Because ultimately my objective is to get this. Fine, my objective is to get this. Somewhere closer to that, we just need to think about it. Fine. So, if suppose there is a different denominator, so if I just shift it to this side, and then after that, if I just do the addition, so just check out what will happen to the addition of numerator. Why I am not doing this and saying, because that is something the thinking you should have before performing the step. Because if you are performing, then 2 minutes has gone. So just think about it. Suppose if I am shifting this here and this and this is added. So in that case, what will happen? B square minus B square get cancelled, but 1 B square is there. Minus A square plus A square get cancelled, but 1 positive A square is there. C square minus C square get cancelled, plus 1 C square is there. So I guess that what will happen in that case? You will get something like this shifted to that side, and you will get, when you add to something like in terms of A square plus B square plus C square, fine, something like this. Now, what to do with cos A, cos B, cos C? We don't know what to do, but otherwise they have not even given the angles. That is something we took. They are just on the sides. ठीक है, क्वेश्चन टफ हो गया 2006. सो ये जानबूझ के लिया मैंने. Excuse me. I have just taken it for some intention that हमको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि 1920 में जो क्वेश्चंस आए थे वो टफ थे. लिटरली उनका लेवल काफ़ी इजी है कंपेयर टू देखो ये 2006 का क्वेश्चन. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो cos A के बारे में मुझे इतना मालूम है, ये इनइक्वालिटी है. इनइक्वालिटी में हमको काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है. You got lots of freedom when there is an inequality. What I can do? It's equal to. What I can do? Cos A तो 1 से छोटा ही होगा ना. Cos A की वैल्यू 1 से छोटी होगी because cos 0 और 1 के बीच में रहता है. Cos B भी और cos C भी. तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो है ये less than equal to 1 होगा, less than equal to 1 होगा, less than equal to 1 होगा. Because cos A, cos B, cos C is always 1 or less than 1. Fine.
अब इसको क्रॉस मारो, इसको क्रॉस मारो और उसके बाद एडिशन करो, ठीक है। सो जब मैंने एडिशन किया था, व्हेन आई वाज टेलिंग यू गाइस क्रॉस दिस, सो आफ्टर एडिशन यू आर गेटिंग a square plus b square plus c square, and this is twice bc, this is twice ac, this is twice ab, shifted to this side, shifted to this side, so minus twice ab, minus twice bc और माइनस ट्वाइस ऐसे। और एक काम करते हैं, एक बार का उधर ही रख देते हैं उसको, ठीक है, एक बार का उसको उधर ही रख देते हैं। तो ये एडिशन इधर हो गया और ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से एडिशन कर रहे हैं, ये ट्वाइस बी सी उधर गया, ट्वाइस बी सी प्लस ए सी प्लस सी है ए बी, सॉरी, या समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग। नाउ इज दिस मेकिंग एनी सेंस टू मी? Is this making any sense to me? I want a plus b plus c whole square. So can I do some arrangement over here? Can I add twice ab, twice bc, and twice ac this side? So same to that side, same to that side. So what I am going to get by doing this? I am going to get an identity which is a plus b plus c whole square. And when I add this to that side, so that is already 2 times, 1 more times 2 times, so it will become 4 times. It will become 4 times. So ultimately what is on left hand side? A plus b plus c whole square, and that side is 4 times. Now just bring it to this side because we want that only, and ultimately we got it. ab plus bc plus ca is less than equal to 4, is less than equal to 4. सो नाउ इसको उठा के यहाँ डाल देते हैं इनइक्वालिटी को, बिकॉज अल्टीमेटली हमको लैम्डा के बारे में पूछा है, ठीक है ना। इसको उठा के हम यहाँ डाल देते हैं, तो इसको उठा के अगर हम यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, बिकॉज दिस पोर्शन इज लेस देन इक्वल टू 4, दिस पोर्शन इज लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ लेस देन इक्वल टू 4, ध्यान से देखना, ये पूरे को हटा के अगर मैं डाल देता हूँ कि ये तो लेस देन इक्वल टू 4 है, तो एक चीज ध्यान रखना, हमारा ऑप्शन आ रहा है ये लेस देन इक्वल टू 4, ये ऐसी चीज बन गई कि 4 छोटा है और ये ऐसा यहाँ पे 3 लैम्डा, और हमको लैम्डा का रिलेशन चाहिए, तो क्या मैं इस 3 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, 4/3 नहीं हो जाएगा, लैम्डा इज लेस देन 4/3। लैम्डा यहाँ पर है, लेस देन का साइन यहाँ पर है, लैम्डा यहाँ पर है, लेस देन का साइन यहाँ पर है, 3 को बुला लिया इधर, सो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 4। Why less than 4/3? Sorry, 4/3. Why? Because देखो यहाँ पे दोनों जगह इक्वल टू कैंसिल हो जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये दोनों जगह इक्वल टू ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, बिकॉज वही चीज़ हमने उठा के यहाँ से यहाँ रखी। तो एक टफ क्वेश्चन कंसिडर करूँगा मैं इसे, और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से हमने इसका आंसर निकाला है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से हमने इसका आंसर निकाला है। अदरवाइज दूसरी भी मेथड है, लेकिन मुझे सबसे इजी ये लगी। आई थिंक कॉस ए वगैरह के जो रूल्स है, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये आइडिया हो गया, फाइन। सो आंसर इज लैम्डा लेस देन 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ ना कुछ क्वेश्चंस मैंने जैसे लास्ट टाइम पैटर्न ट्रिग्नोमेट्री का रखा था, नाउ दिस टाइम द पैटर्न इज मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। It's not a hardcore complex number, but I use the complex number consideration here because you will observe the combination of complex number and what we can say quadratic equation sometimes along with trigonometry. Fine, जैसे यहाँ पर भी एक आ गया था cos a less than equal to 1, ये हमको consideration लेना ही पड़ा, तो यहाँ पर combinations काफ़ी रहते हैं, तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस इस सेट में जो है वो उससे लेकर है जो कि कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्यू ई। ये तो शक्ल से ही दिखता है कि गंदा है, क्यों गंदा है, बिकॉज x+1 होल स्क्वायर हो जाएगा और एक 1 उधर जाएगा तो -1 होगा, समझ में आ रहा है। x² + 2x+1, ये देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है फटाफट करने के लिए, ठीक है। तो ये शक्ल से दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स देगा, ठीक है। तो -1 है मतलब ये i² हो जाएगा, i², सो x+1 विल बी प्लस माइनस I took the under root, so x will be -1 + -i। आई होप दिस इज फाइन, या आई होप दिस इज फाइन। इसको दूसरा भी तरीका है रूट वूट बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करने का, बट वो वेस्टेज ऑफ टाइम। कहीं कहीं पे थोड़ा सा वैकी ऑर्थोडॉक्स वे से सोच के हम जल्दी आंसर बना सकते हैं। अच्छा, एक अल्फा लेंगे, एक बीटा लेंगे, बिकॉज अल्फा बीटा रूट्स है, सो लेट मी टेक अल्फा इज इक्वल टू -1 + i, लेट मी टेक बीटा इज इक्वल टू -1 - i, फाइन।
Okay, great. So I want alpha power 5 15 plus beta power 15 की वैल्यू and we have so many options. ठीक है, एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पर भी जाकर मैं दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. If I know alpha and beta, question asked is this and it is complex. एक ईलर्स मेथड है, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आता है. देखो मैं रीजन के साथ क्वेश्चन के नंबर फ्लो करा रहा हूँ. ठीक है, क्वेश्चन फ्लो करा रहा हूँ. पिछला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, लास्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का था. इसको भी ट्रिग्नोमेट्री से वर्कआउट कर सकते हैं. ईलर्स थ्योरम अगर मालूम होंगी तो e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. लेकिन मैं यहाँ पर उससे यूज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि उससे भी कर सकते हैं. मुझे वो लेंदी लग रहा है, मैं बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा. अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया कि मुझे ये मालूम है और मुझे ये निकालना है. वेरी सिंपल. तो एक देखो, एक मैं अप्रोच बता रहा हूँ, शायद मालूम भी होगा. अल्फा एंड बीटा बोथ आर कॉम्प्लेक्स. सो वी नो दैट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स मतलब उसकी जो मैग्नीट्यूड रहती है वो रहती है अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस आई का प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर. बिकॉज इसके पहले कुछ नहीं मतलब 1 है. ठीक है, लेकिन उसके पहले ना एक चीज कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं. मैं अलग से बता रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई. फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई. ठीक है ना. तो ये माइनस जो है ना इसको बाहर ही रख देते हैं, ज़्यादा इजी जाएगा. तो 1 का स्क्वायर, अब क्या सब प्लस प्लस हो गया तो काम इजी हो गया. सो 1 प्लस और यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 हो गया तो -1 का स्क्वायर, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो अल्टीमेटली वो -√2 दे रहा है. -√2 दे रहा है, या तो उसको -1 हम साइड में रख देते, √2 को चलाते, माइनस एंड में देखेंगे क्या कर रहा है. ठीक है, समथिंग लाइक दैट आ रहा है. चेक करते हैं. अब हमको क्या चाहिए, ये होगा सपोज अल्फा की वैल्यू और उसी तरह से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बाहर और 1 प्लस आई का तो फिर से √2 आ जाएगा, तो वही आएगा. ठीक है ना. सो लेट अस ट्राई हियर व्हाट विल हैपन. अल्फा पावर 15, सो क्या कर सकते हैं, -√2. देखो √2 को 15 बार करना है और वापस से √2 को 15 बार करना है, मतलब 2 टाइम्स है. ठीक है ना. ये इलर्स मेथड से बहुत ज़्यादा इजी है, 2 टाइम्स है. तो ये क्या होगा, 2 का पावर 15/2. ठीक है ना, और इंटू 2 समथिंग लाइक दैट ऐसा आ रहा है. ठीक है. सो क्या ये करेक्ट अप्रोच है या कुछ इसमें मिस्टेक है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा. मतलब क्या ये करेक्ट है, अल्फा की वैल्यू हमने √2 लेकर आए और उसके बाद उसके पावर्स वगैरह ले रहे हैं, इसके बारे में सोचना. लेकिन ये भी एक अप्रोच है जिससे हम आंसर ला सकते हैं. मैं एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ, वो अप्रोच मुझे ज़्यादा इजी लगा बिकॉज यहाँ इस मोमेंट पर आके मॉडुलस आर्गुमेंट वगैरह के चक्कर में कोई पढ़ता नहीं है. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो अल्फा है इसकी जगह मैंने सीधे लिख लिया -1 प्लस आई का पावर 15 और बीटा की जगह फिर से लिख लिया प्लस -1 माइनस आई का पावर 15. सिंपल, ऐसा कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है. अब ये ऑड पावर है तो माइनस अगर बाहर लेते हैं तो -1 होके बाहर आएगा और 1 माइनस आई का पावर 15 हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. और ये भी माइनस बाहर निकालेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और मैं इसको कॉमन में ले लेता हूँ तो ये 1 प्लस आई का पावर 15 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा. ठीक है. अब एक तरीका है कि बाइनोमियल एक्सपांशन करो, है ना, बहुत भारी पड़ेगा वो बाइनोमियल एक्सपांशन, तो ये कठिन होते जा रहा है. ठीक है. अगर हम इसको वर्कआउट करने जाएंगे तो ये कठिन होते जा रहा है. तो देखो मैं छोटा सा यहाँ पे एक अप्रोच बता रहा हूँ, ऑप्शन देख लो. 256 माइनस 256 512 माइनस 512. ठीक है. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन मैंने फेस किया था तो मुझे डायरेक्टली आंसर समझ में आ गया था बिकॉज द मोमेंट आई गॉट दिस टू वैल्यूज and after that this is alpha power 15. So what happened in the very next step, I just concluded that this could be the answer. What is the answer? Check out this. It is √2. So what is √2 power 16? I am closer to that, 15. So what is √2 power 16? So it will be 2 to the power 8, which is 256. Which is 256, and this is 2 times of that because both are giving the same answer. So this is 256, and I already took minus common. Are you guys getting something? So Euler's theorem is the best over here because it will take another 3 minutes of time.
Fine, it's a mains question, so obviously we don't have that much of time. Second, this argument and modulus and argument is something which don't click at that moment. That is for sure. अरे कैसे? ठीक है, हम नहीं सोच पाते ये गिवन और ये निकालना नहीं सोच पाते, बट वो भी एक अप्रोच है, मैं बता रहा हूँ. और तीसरा अप्रोच ये कि बाइनोमियल एक्सपांशन का है, और जो मैंने किया वो चौथा अप्रोच है. ठीक है, मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये देखने के बाद माइनस कॉमन आ रहा है तो आंसर निगेटिव आने वाला है, बिकॉज द रीजन इज पावर इज ऑड. Power is odd, so answer should be negative. That is for sure, either minus 512 or minus 256. That's why I always insist student, whether it's a 7th grade, standard grade, IMO, NSO, people look at the options. Look at the options. So one thing is confirmed, minus 256 or minus 512. Fine. Second thing is very simple, 2 to the power 16. Because root 2 to the power 16, it gives me 256. There is no possibility of reaching to 512, because for getting 512 8 cube, that means 2 to the power 9, that is 2 to the power 9 and 2 to the power 18. 18 is nowhere close. It is 15, and at the max when I double it out, so it's 16. So it is as simple as that. Okay? So already I have spent much time on this. So I hope that this is fine. This is fine. Very simple question I made it. Otherwise, it seems to be very tough question. Fine. Yeah, this is something, a question which was talk of the day when it came in last year, first shift, 3rd September. Spent such a long time to crack this question, but let me again tell you that I don't belong to that category of people or that category of teacher that who wants to spend that much of time. So we'll just make it out quickly. क्या बोल रहा है वो? Alpha beta are the roots of this equation, x square plus px plus 2. And 1 upon alpha and 1 beta are the roots of this equation. देखो अल्फा बीटा एक इक्वेशन के रूट है, 1 upon alpha 1 upon beta दूसरे इक्वेशन के रूट है. अगर इस इक्वेशन पे ही मैं फोकस करता हूँ तो अगर अल्फा बीटा इसके रूट है, ध्यान से सुनना, अगर अल्फा बीटा इसके रूट से, मैंने एक बार बताया भी था शुरुआत के कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन के टॉपिक्स में, तो 1 upon अल्फा और 1 upon बीटा किस इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं, ये हम बना सकते हैं. क्या करेंगे, x की जगह 1 upon x रिप्लेस करेंगे. If I replace x with 1 upon x, then the roots of that equation will be 1 upon alpha and 1 upon beta. So what will happen to that equation? If I replace x with 1 upon x, that equation will be 2x square plus px plus 1. Check out. I replace x with 1 upon x, cross it. So it will be 2x square plus px plus 1. Hello, this and this. Check out. Because already 1 upon alpha and 1 upon beta are the roots of this equation. So apple comparison will give you directly p is equal to 2q. This is the shortest method to get relation between p and q, because you require to get the relation between p and q. And believe me, this is something just which is not available on the YouTube. Why? This is not available on the YouTube. P is equal to 2q. You got the relation because ultimately, अच्छा ये मेरा 9 है, ठीक है ना, ये 9 है मेरा, ये q है, ये p है. I hope so. Yeah. So it is 9/4 times this. हमको या तो p में पूछा है या तो q में पूछा है, ठीक है ना. तो हमको p और q का रिलेशन मालूम होना जरूरी है. अब सब हम रब करके सिंपल लिख लेंगे कि भाई p is equal to 2q हमको मिल चुका है, ठीक है. इसके आगे की कहानी है ये. अब इसको बनाने में भी एक छोटी सी ट्रिक का यूज करेंगे. जनरली हमको इसके आंसर निकालते समय क्या किया गया है, चारों को मल्टीप्लाई किया. नहीं है भाई, इतना टाइम चारों को मल्टीप्लाई करने जाओगे कितना समय बर्बाद होगा. नहीं है. ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना. क्रॉस मार रहा हूँ यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा, बाजू में क्रॉस मार के वापस से अल्फा बीटा आने वाला है, और यहाँ पर भी क्रॉस मारेंगे तो अल्फा बीटा आने वाला है. तो नीचे ले लिया ये पूरा अल्फा बीटा होल स्क्वायर. ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं. गलत किया, -1 है ना. अल्फा स्क्वायर -1 इधर आ जाएगा इनटू बीटा स्क्वायर -1. फाइन, बीटा स्क्वायर -1 इधर आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 इधर आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस 1. दैट मीन्स अल्फा बीटा प्लस 1 का स्क्वायर. तो कहानी हमारे कंट्रोल में आ गई है. कैसे आई है मैं बताता हूँ. ठीक है, मैं सबसे पहले इसको उठा रहा हूँ. अल्फा और बीटा उसके रूट है. सो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो इज -b and product of the zeros is directly 2, and I got product of the zeros at 2 places. Very good. Fine. Now problem है यहाँ पर, नहीं है प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. इसके पहले मैं ले चुका हूँ. इफ यू रिमेंबर दैट हम अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर को हम अल्फा बीटा में कन्वर्ट करते हैं लीनियर में, बिकॉज दैट इज इजी टू टैकल. Fine. So how I can convert alpha square -1? Yes, I can convert, because I can replace x square with alpha square.
Fine. So it is alpha square is equal to minus p alpha minus 2. Very simple. Px plus 2 goes to that side. So alpha square is equal to minus p alpha minus 2. Similarly beta, because beta is also the 0. So minus p alpha minus 2 alpha square की जगह डालेंगे और alpha square minus 1 क्या हो जाएगा? माइनस पी अल्फा. ध्यान दो, इसके बाद में माइनस 1 भी अगर करता हो तो ये माइनस 1 माइनस 3 मिलेगा. सो माइनस पी अल्फा माइनस 3 एंड हियर minus p beta minus 3. सेम चीज, सेम एग्जैक्टली सेम. ओवर बॉक्स अल्फा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुकी है. 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आ चुकी है. 2 का स्क्वायर 4. 9/4 की कहानी सेट हो गई एकदम. ठीक है, अब इसकी कहानी सेट करना है. एक माइनस बाहर निकालो, यहाँ से माइनस बाहर निकालो. माइनस इंटू माइनस प्लस पी अल्फा प्लस 3. मैं नहीं लिखूंगा, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई. पी अल्फा प्लस 3 पी बीटा प्लस 3. सो पी स्क्वायर अल्फा बीटा, ध्यान से, प्लस 3 टेकन कॉमन, पी टेकन कॉमन बिकॉज ऐसा मल्टीप्लाई और ऐसा मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, टाइम्स अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, एंड और कुछ है, हाँ 9 + 9. नाउ चेक आउट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, सो इट बिकम्स माइनस 3p स्क्वायर. और ये अल्फा बीटा इज 2, so 2p square and plus 9. So you got the answer minus p square plus 9. Fine, minus p square plus 9, 9 minus p square times 9/4. इससे जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. जो मैंने स्टेप बताई है उससे जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता. ये मिनिमम टाइम है. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले तो इनके इस तरह से इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करके समय बर्बाद नहीं करना है. आपस में ही किया और उसके बाद ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, उसको कन्वर्ट कर दिया अल्फा बीटा में, बिकॉज स्क्वायर को प्ले करने के लिए टाइम लगता है. ठीक है, कैसे किया कन्वर्ट? बिकॉज आई नो अल्फा स्क्वायर इज माइनस पी अल्फा माइनस 2. सिंपल, दैट अप्रोच से कर दिया और रेस्ट इज द हिस्ट्री. ठीक है ना. हाँ, क्या किया था, उसकी जरूरत पड़ी क्या? p = 2 क्यों? p = 2 क्यों बनाया मैंने इस क्वेश्चन में? ये सोच के बनाया कि यहाँ शायद कुछ काम आएगा. जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना. तो कहने का मतलब यह है, अगर सही में बताओ तो ये इक्वेशन तो बकवास नहीं ना, कोई काम की नहीं रही. ये इक्वेशन तो कोई काम की नहीं रही, पूरा खेल ही ऊपर से हो गया, है ना. तो देखो, कभी कभी ये लोग इतना प्ले करते हैं कि हम लोग उसमें पूरे फंस जाते हैं. अरे ये क्या है, वो क्या है. एक क्वेश्चन मुझे याद है, कॉम्प्लेक्स रूट्स दे दिया था वर्ड, और बस कॉम्प्लेक्स रूट तो दिमाग में ओमेगा आ जाता है, आयोटा आ जाता है, फिर हम दूसरे वर्ड में चले जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. देखो, फिर से बोल रहा हूँ, आज का पहला क्वेश्चन देखो, और ये 20 का क्वेश्चन है. बहुत ईजी था 20 का क्वेश्चन, बिना कुछ सेकंड इक्वेशन का यूज करे हमने इसको बना लिया. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन, बट थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है. फर्स्ट विल टेक 26 क्वेश्चन का रीजन बिहाइंड इट. ये अभी सेकंड क्वेश्चन जो लिया था उसके जैसा ही है, एग्जैक्टली वही इक्वेशन है, और हमको बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स ही मिलने वाला है. अभी लिया थोड़ी देर पहले हमने लास्ट स्लाइड में x² - 2x + 2, जिसमें हमने अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 निकाला था. 8 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट 2019. फिर से सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ. 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 27 तक हमारे टोटल हो जाएंगे. ओके, सो 8 अप्रैल को पूछा गया क्वेश्चन है. कहानी वही है, कहानी बिल्कुल वही है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको. x - 1 हमारा प्लस माइनस i आया था, तो x = 1 ± i आएगा. ठीक है, ऐसा कुछ था. और एक अल्फा बाय बीटा क्या आ जाएगा, हम अल्फा ले लेते हैं 1 + i एंड आई विल टेक बीटा एज 1 - i. सो व्हाट इज अल्फा बाय बीटा पावर n? क्वेश्चन आस्क इज लिस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. एक रिलेशन है, सो इट इज 1 + i upon 1 - i पावर n इज इक्वल टू 1. लेट मी रैशनलाइज इट. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करते हैं इसको. सो 1 - i को 1 + i से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 1 + i से. फाइन. सो ये हो जाएगा 1² - i² मतलब 2. क्यों क्यों क्यों? क्योंकि i² की वैल्यू -1 होती है. सो 1 - i² क्या हो जाएगा, 1 - +1, सो दैट इज 2. ठीक है, ये सब फटाफट करना है. ठीक है, तो नीचे आ गया 2, क्रॉस में मार देंगे. सो 1 × 2 = 2. ठीक है, एंड 1 + i 1 + i, दैट इज 1 + i होल स्क्वायर. गलती किया, ये 2 उधर क्रॉस ले जाएगा, पावर में n है. ठीक है, तो ये अपन यहीं पे रखते हैं, जो
Okay, so 1 plus I is 1 plus I whole square, 1 square plus I square is minus 1 and plus 2I, ठीक है, and whole power n is equal to 1. So that gives me this 2 gets cancelled, 2 gets cancelled, I power n is equal to 1. I hope n is equal to 4. Everyone knows this. मैंने एक क्वेश्चन इसके जैसा पहले ले चुका हूँ, ठीक है. That will be I is equal to, sorry, n is equal to 4. Why? Because I is I square is minus 1, I cube is minus 1 multiplied by I minus I power 4 is minus I multiplied by I square minus I square, and I square is already minus 1, so it is 1. ठीक है, fourth power is always giving you the real answer. Fine. So it was a very simple question. ठीक है ना, ये काफ़ी सिंपल था. शायद वो अल्फा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन उसके कंपेरिजन में ये काफ़ी सिंपल था. ठीक है, और रूट जो मैंने बनाया है फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स वगैरह में या बहुत सारे वीडियोस में क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ किया गया. मत करो, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच फॉलो करो, बिकॉज क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करना मतलब 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगना ही लगना है. जहाँ पॉसिबल ही नहीं है वहीं यूज़ करना. ठीक है, थोड़ा सा जस्ट थिंक ऑर्थोडॉक्स पे. फाइन. या 20 मिनट, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है. थोड़ा सा बेसिक नॉलेज. अब ये मैं बता के थक चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, मैं एक फाइनल बता ही देता हूँ, शायद मालूम भी होगा. फंक्शन चैप्टर अगर हुआ होगा तो 2 पावर x का ग्राफ ऐसा रहता है, तो ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता. 2 पावर x का ग्राफ ये ऐसा रहता है. यू कैन जस्ट ड्रॉ द ग्राफ. कुछ क्वेश्चंस ग्राफ बेस भी लेंगे. ठीक है, तो 2 पावर x कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता. तो जैसे ही ये बात हमारे समझ में आ गई, ये क्वेश्चन से मोड़ हट गया. क्वेश्चन बिकम्स लॉलीपॉप. ठीक है, 10th अप्रैल 19. ठीक है, सेकंड से क्या क्वेश्चन पूछ लिया. अब वो निगेटिव है ही नहीं तो क्यों मोड़ डाला भाई ने. है ही नहीं निगेटिव, पॉजिटिव ही है ना, वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो सब हटा देते हैं. 2 पावर x को मैं k ले लेता हूँ. सो 5 प्लस 2 पावर x को k लिया प्लस 1 और इधर k और k प्लस 2. क्वेश्चन खत्म. 6 प्लस k. ये तो यार 7वीं क्लास का 8वीं क्लास का क्वेश्चन होगा. k स्क्वायर प्लस 2k. सो k स्क्वायर प्लस k minus 6 is equal to 0, and I can't spend much time. It is k minus 3 k2. k निगेटिव नहीं हो सकता because एक्सपोनेंशियल है 2 पावर x. So k is equal to 2, which is 2 power x. So I got x is equal to 1. लेकिन गलती इस क्वेश्चन में नहीं, लेकिन बच्चों से हो सकती है. x is equal to 1 आ गया है और यहाँ पे 1 ऑप्शन भी है. फटाक से टिक कर दिया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा. उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ रियल रूट्स. क्वेश्चन पढ़ना. अगर सपोज इसका आंसर 2 आता था तो यहाँ पे 2 भी ऑप्शन है, 2 पे टिक कर देते थे, जबकि आंसर उस समय भी 1 ही था. बिकॉज क्वेश्चन आस्क्ड इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स. तो यहाँ पर हमको x की एक ही वैल्यू मिल रही है रियल. इसका आंसर इसलिए 1 आएगा, ना कि इसलिए 1 आएगा कि x की वैल्यू 1 है. ठीक है, आई गेस दैट दिस वाज अ 30 सेकंड क्वेश्चन. दिस वाज जस्ट अ 30 सेकंड क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट. आई होप दैट दिस इज फाइन. देखो क्या रीजन था मैंने 2006 के क्वेश्चन से स्टार्ट किया. यहाँ जानबूझ के एडवांस के क्वेश्चन नहीं लिया है, कभी पूरा सेट ही आएगा एडवांस का. ठीक है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट. मतलब गैदर करने में. ठीक है, मतलब सॉल्व करने में नहीं, गैदर करने में. बिकॉज कभी कभी ना 2-3 जो सोर्सेस रहते हैं वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी मिसप्रिंट वगैरह रहता है. सो आई जस्ट नीड टू कंफर्म इट फ्रॉम 2-3 प्लेसेस. सो बिकॉज ऑफ दैट इट टेक्स सम टाइम्स. फाइन. या द लास्ट क्वेश्चन इज, ये भी इजी है यार. मतलब पी एन क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर. 2 माइनस रूट 3 एक रूट है क्यू का, तो ये हमको मालूम है. अगर कुछ है क्या, इज द रूट ऑफ 2 माइनस रूट. अच्छा ठीक है, मैं बाद में पढ़ता हूँ. 2 माइनस रूट 3 एक रूट है, तो 2 प्लस रूट 3 दूसरा रूट होगा. ये हमको मालूम है. मैं एक्चुअली देखा था अल्फा बीटा दिया है क्या, मैं ले लेता हूँ. ठीक है, ये हमको मालूम है. बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट जो है वो हमेशा पेयर में आते हैं. 2 माइनस रूट 3 सॉरी इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आते हैं. ठीक है, इरेशनल रूट हमेशा पेयर में आते हैं. 2 माइनस रूट 3 एक है, तो 2 प्लस रूट 3 दूसरा होगा. सो व्हाट इज सम ऑफ द रूट 4 एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट. इट विल बी 1. It will be 1. 2 minus root 3 into 2 plus root 3 is 4 minus 3, which is 1. ठीक है. So हाँ, तो what is sum of the root minus p
है ना, इसको देखते हैं. एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट. अरे यार ये p को हटा ही देते, क्यों ही लिखते हैं प्रोडक्ट का. ठीक है. देन हो क्या हलवा क्वेश्चन था. हमको वैल्यू मिल गई है, वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर चेक करना है. p इज इक्वल टू -4. We got p is equal to -4 and q is equal to 1. We just need to put a common sense. P is equal to -4, तो ये हो गया 16 -4 हो गया. दिस इज आंसर. ठीक है. मैंने देखो मेरे को कुछ आंसर मालूम नहीं था, ना मुझे याद था. मैंने सिर्फ पता है मैंने एक वर्ड यूज किया कॉमन सेंस. ठीक है. क्यों यूज किया देखो, ये एक्सपीरियंस से आता है. क्यों यूज किया मैंने देख लिया यहाँ पर +12 है. ठीक है. तो इसको तो कोई हटा नहीं सकता, +12 है. हमको 0 लाना है. ठीक है. और ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना. कुछ गलत किया क्या मैंने. सॉरी 16 -4 to सॉरी इट इज दिस. सॉरी दिस +12 नहीं, -12 वाला रहेगा. ठीक है. दिस इज द आंसर. फास्ट होता है एकदम. कैसे. p² तो पॉजिटिव ही होना है, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव चाहिए, ये श्योर था. तो जब मैंने ऑप्शन लिखे थे तभी क्लियर हो गया था. मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये में से आंसर रहेगा. क्लियर था तभी एकदम, क्योंकि p² तो पॉजिटिव है ना, उसमें से कम करेंगे -12 या -16 करेंगे तभी तो 0 आएगा. और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो क्यों की वैल्यू हमारी 1 डाल देंगे यहाँ पे. तो देख लो 16 -12 4 -4 0. ठीक है. सो दैट इज योर आंसर. होप दिस इज फाइन. सो I am expecting 2 more videos on this. One is again from mains perspective, then one is completely on JEE Advanced. And with that topic will be over. Plus one more video of 2021 because I have not yet taken any single question of 2021. So that video will cover all the question of 2021. Okay, fine. Thank you.